record this. Okay, thank you. Just 1 or 2 minutes because it's 3:29. I'm just waiting for 1 more minute. Okay. So, welcome you all. Pratibha ma'am, Romita ma'am, Rachna ma'am, Deepti ma'am, Shubha ma'am. Deepti ma'am, Shubha ma'am, Rachna ma'am, it will be great if you will open your camera. It will be really nice of you. I hope you all can unmute yourself. Just Pratibha ma'am, can you check? Can you unmute yourself? Yeah, Hi, yeah. ma'am. It's nice to see you. Sorry, I'm somewhere else, so I cannot switch on my Okay. camera. Okay, it's fine. Just for a minute if you can. So I'll just take a picture. Anna, it's working, ma'am. Okay. 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 So thank you, Nilu ma'am. So I think you are at home or traveling somewhere. I Romita ma'am to travel kar rahi hai. She's traveling. Okay, so I'll just let me introduce myself. Uh, myself, Saloni, and welcome to this webinar on understanding your child behavior. So we are going to explore what lies beneath their action. They are fostering, knowing about their perspective. So it is going to be a bilingual session where I'll speak both in English and Hindi. So just give me a thumbs up if you are comfortable with both the language. Okay, thank you. So अगर आप ये सोच कर आए हैं कि हम यहाँ पे कोई जादू वाला सेशन करेंगे और अगले दिन से हमारे बच्चों के साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. वी बोथ वे वी मी एंड यू वी बोथ आर गोइंग टू वर्क टुगेदर ऑन दिस, एंड in this 40-minute session I will assure you that you are going to see your child today, after today, on a different perspective. You will see them differently. You will understand them differently. And I'm going to assure you with this that this is really going to help you out. And I'm so thankful from heart that from your busy day, busy schedule, you all have taken time to come and join this session. Thank you. And I'm grateful for you all. Okay. So, as you all know that my name is Saloni. I'm educator. I'm a teacher, and uh, I have been doing teaching in school, different schools since last 15 years. And just a introduction, if you allow me to give my introduction, if you allowing me to give my introduction, please type yes in the chat box. If you allow me to give me your introduction, please type yes. Thank you. Thank you so much, Shreya ma'am. Okay. So, I'm an educator, and I have been teaching in many schools. And right now I am teaching in St. Anandaram Jaipuria School. And I am really, I have observed, and I frankly, I just want to tell you that it was
my child and I saw my child struggling with lot many things, then I decided that it's me only who is going to help my child. Nobody else will come and help your child. It is only you who is going to come and help your child. That is why I decided, and I from that day I started doing lots of research. I started reading lot many books. I did lots of workshops, and I also did many research on how the child behaves, why the child behave differently, why they backtalk, what is the reason behind it. So in today's 30 or 40-minute session, you will first understand what is the reason behind their this type of behavior, where we as a parent are lacking. So if you are thinking that we are sitting here to correct our child or our kid, so I'm sorry, we are not going to do that. अगर आपको ये लग रहा है कि आज के बाद हम अपने बच्चों को ठीक कर देंगे, तो माय डियर, आप हम सब गलत हैं इस जगह पर. आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन 90% केसेस में गलती बच्चों की नहीं, गलती माँ बाप की होती है. हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये हमारी गलती है. हमें नहीं पता होता कि हम ऐसा क्या करें, और वहां पे हम लैग करते हैं, क्योंकि हम हमें किसी ने, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई सीख सके. और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी पेरेंट हूं या आपने गलत पेरेंटिंग की है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं जिसकी वजह से हम ये गलतियां करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जैसा हम फील करते हैं, द वे वी, द चिल्ड्रन आर ऑल्सो लाइक अस, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस अ वास्ट रेंज ऑफ इमोशन every single day. And it is very very important for us to understand their feeling. And till the time you're not going to understand, you're not going to connect with them. Sometimes they are joyful, sometimes they might feel sad, angry, frustrated. They're human being just like us. And all of the emotions what they are feeling is actually valid. It is the way we are going to respond. And if we understand their emotions, literally I'm telling you, you are going to come out with a solution. Let's embrace their smile, comfort their tears, navigate their outburst, and empathy, and understand them. So, if you are going to allow me, I will first tell you scientifically where we are falling. हम कहाँ गलती कर रहे हैं. सो थोड़ा सा हम पहले बच्चों के ब्रेन के बारे में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे कि बच्चे हमारी बात समझ ही नहीं पाते हैं, क्या रीजन है. तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले आप सबको ब्रेन के बारे में बताऊंगी कि आखिर हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है. उसके बाद धीरे धीरे हम उनके इमोशंस को और उनकी बातों को समझेंगे. उससे पहले आई एम गोइंग टू शेयर वन poll with you, and you have to just give your answer. I'm going to share the poll in the chat box. Just answer this question. So I hope, just give me a thumbs up. Welcome, ma'am. Those who have joined just now, we started the session at 3:30, and it's nothing much we have done. We're just given the introduction, and I have just shared a poll in the chat box. Those who have joined now, just now, can just give the poll. I'm just sharing. I think, yeah, I am just resharing. Okay, so
So I hope my screen is visible to everyone. I'm just going to. Yes, ma'am. Okay. Okay, so these are the common issues which I can see: frequent tantrums, outbursts, lack of focus, motivation, okay, not listening, back talk, okay, anxiety, worry, or low confidence. I'm confused, I cannot understand what's going on. So I guarantee you, after 15 minutes, I guarantee you, you will understand what is going on and why you are so confused. As like me, I was also very confused at what is happening. Whatever I am doing, my child is not able to understand. हो क्या रहा है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं मेरा बच्चा मेरी बात समझता है, क्यों नहीं मेरी बात उसको समझ में आती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स अंडरस्टैंड what is the reason behind it, why my child is unable to understand what I am saying. Okay, so let me just share my screen, and let me just share my PPT, and then we will come to this. Okay, just give me 1 minute. So I hope you are able to see my PPT. Okay, so see, so understanding the root behavior. So here you can see an iceberg where you can see the tip, but hidden, there are hidden many things hidden inside it. Okay, so let us understand first the human brain. Just give me 1 minute. Okay. Okay, so you can see this. I'm not going to teach you science here, बस थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ये जो आप पर्पल वाला जो सेक्शन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ये जो आगे वाला जो ब्रेन है, जिसको हम ये फ्रंटल लोब भी कहते हैं, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो हमारा आगे वाला ब्रेन है. वेलकम नेहा शर्मा मैम. एक्चुअली वी हैव जस्ट स्टार्टेड एट 3:30 and I had given my introduction, and I'm just explaining कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि बच्चे हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, उनको हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती है. तो अभी हम बस थोड़ा सा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट द ब्रेन एंड हाउ इट फंक्शन. सो ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यू विल वोंट वी विल नॉट बिलीव, ये 25 साल की उम्र तक डेवलप ही नहीं होता है. और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आखिर करता क्या है? आपके जितने भी थॉट्स हैं, मीनिंगफुल, लॉजिकल, एसोसिएशन, फीलिंग अबाउट फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग ओवर इम्पल्सिव, एम्पैथी, मोरालिटी, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, everything is controlled by this prefrontal cortex. तो जब हमारे बच्चे का ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्ड ही नहीं है, और उस बच्चे से हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा हमारी, हम बोलते हैं बच्चा हमारी बात समझता ही नहीं है. अब आप जैसे इमेजिन करिए कि आप जैसे आप किचन में, या लेट मी जस्ट गिव मी वन एग्जांपल कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, या स्कूल का, आपके ऑफिस का, या किसी भी चीज का, यू आर टू मच इनग्रॉस्ड इनटू इट, यू आर डूइंग इट, आप करेज कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं, एंड देन आपका बच्चा आता है और आपका बच्चा आपको बोलता है मम्मा मुझे पानी दे दो, फॉर एग्जाम्पल. एंड देन आपने सुना, आपका माइंड जो है, आपका माइंड जो प्री फ्रंटल लोब है वो डेवलप्ड है, बट आपने एक्चुअली यू आर सो इनग्रॉस्ड इनटू योर वर्क, आप अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे दैट वो आपने सुना तो जरूर बट डिड नॉट रजिस्टर्ड इनटू योर माइंड. ये तब हो रहा है जब आपका प्री फ्रंटल लोब टोटली डेवलप्ड है.
जस्ट इमेजिन अबाउट दैट चाइल्ड जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बात को समझे, कॉम्प्रिहेंड करे और आपकी हर चीज को वो लॉजिकली समझे, जहां पर उसका वो लॉजिकल ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है। उसका कौन सा वाला पार्ट डेवलप्ड है? दिस अमाइगडाला, विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर इमोशंस। तो उसका इमोशनल वाला पार्ट पहले डेवलप हो गया है in comparison to the understanding, logical decision making, planning, self understanding, controlling emotions। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं जो उसको समझ में ही नहीं आ रही हैं, और हम क्या सोचते हैं? हम शाउट कर रहे हैं। बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, child is not able to understand कि what is happening, and then हम continuously बोले जा रहे हैं, ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो, यहाँ बैठो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो। So what will the repercussions of it? The child will become overwhelmed, and then continuously, if you're continuously shouting and doing, तो क्या होगा? वो बैक टॉक होगा, क्योंकि बच्चे को रजिस्टर नहीं हुआ। द बच्चा इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एंड दैट इज द मेजर रीजन वेयर द चाइल्ड बैक टॉक्स। जब बच्चा आप पे पलट के बोलता है और आपसे पलट की बातें करता है। एनीवन हु वांट टू से समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एनी क्वेश्चन? Okay, so see, you are saying that some kid respond, listen, make decision, plan, focus and execute logically. ये तब हो रहा है जब आप, देखिए मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे इसीलिए ये कर पाते हैं क्योंकि 0 to 3 years, जब आपका बच्चा, जब न्यू बॉर्न बेबी, जब बेबी बॉर्न होके आता है, तो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स बिल्कुल खाली, बिल्कुल फंक्शनल नहीं होते हैं। उस समय कुछ भी नहीं होता है। when the child is the mother is holding the child, जैसे ही वो मदर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसके न्यूरॉन्स कनेक्शन शुरू हो जाते हैं। अब जहां पर द मदर इज टोटली इन्वॉल्व इनटू द चाइल्ड, मैं ये नहीं कह रही हूं, ये भी बात मैंने बहुत ज्यादा मैंने पेरेंट्स की सुनी है कि हमने अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ दिया। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, मान लीजिए एक एक खाली ग्लास है, उस खाली ग्लास से क्या आप दूसरे ग्लास को भर सकते हैं? नेवर। So till the time you are not happy, you are not going to fulfill the other person's desire. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब बच्चा 0 to 3 years का होता है, उस समय उसके ब्रेन का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाता है। आप जब बच्चे को 0 to 2 years तक, देखिए हमारे जब शास्त्रों में, जब हम अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, यहाँ में हिंदी में संस्कृत या हिंदी आप जो भी बोलें, ये पहले बोला जाता था कि लाड़ियेत, ताड़ियेत एंड मित्रेत। मतलब पहले 0 to 5 years तक आप बच्चों को लाड़ियेत, मतलब उसको प्यार दीजिए, सिर्फ प्यार दीजिए। ताड़ियेत, ताड़ियेत का मतलब ये नहीं कि मारिए, ताड़ियत का मतलब ये है कि उसको 5 to 11 और 12 years तक आप उसको डिसिप्लिन कीजिए। एंड देन मित्रेत, जब बच्चा टीन में आ रहा है तो आप उसके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि जब हमारे बच्चे के साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं है, व्हेन वी आर नॉट कनेक्टेड विथ आवर चाइल्ड, और हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम आती है। तो कुछ बच्चे, जैसे कि ज्योतिका मैम ने बोला कि कुछ बच्चे बहुत शुरू से ही बहुत प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग और फोकसिंग होते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ कनेक्शन कर सकते हैं।
पहले मैं ज्योतिका मैम का प्रॉब्लम जो उनका क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन उसको मैं आंसर करती हूँ। देखिए क्या होता है कि कुछ बच्चों जब बच्चे माँ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और आप कनेक्शन कब कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऐसा होता है पूरे दिन में। और कुछ माएँ वो चीज बाई बर्थ में भी बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के चीजों को देख के सीखते हैं। बच्चों का मिरर न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होता है, जो मिरर न्यूरॉन्स हम सबके ब्रेन में, हम जो सामने देखते हैं जैसा इसलिए लोग कहते हैं ना संगति, जब ऐसी संगति करो। पहले के जमाने में हमारे जो पुराने आचार्य थे वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थे, हमसे ज्यादा साइंटिफिकली डेवलप्ड थे। उसे कहते थे, वो हमेशा कहते थे कि ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनकी तुम अच्छी अच्छी आदतें ग्रहण कर सको। बिकॉज आप मिरर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होता है, यू एक्ट लाइक द पर्सन जिनको आप बार बार देखते हैं। तो वो जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ कहाँ पे कनेक्टेड फील कर रहा है, उसकी माँ ने उसको बचपन से अपने से कनेक्टेड फील रखा है। एंड दैट इज वाई दैट चाइल्ड हैज गॉट द डिसिप्लिन वे, बिकॉज उसकी माँ ने उसको बचपन से बताया कि बेटा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिलिट्री रूल्स आपको बचपन से लाना होगा। जब नहीं, बिकॉज आई लर्न इट वेरी लेट, सो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ वेरी हैप्पी पेरेंट, और यहाँ पे एक दिन के बाद अगले दिन से आप बड़े अच्छे पेरेंट बन के निकलेंगे और आप सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। बट मिलकर वी टुगेदर कैन श्योरली डिसिप्लिन एंड हैव अ कनेक्शन। पहले करेक्शन करने से पहले लेट्स बिल्ड कनेक्शन। और हम कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। 3 टाइम होता है ऐसा पूरे 24 आवर्स में जब आप बच्चे के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं। कब? जब बच्चा सो के उठता है। क्या होता है कि जब आप भी जॉब पे जाने वाले हैं और आपका बच्चा स्कूल जाने वाला, आप इतनी हड़बड़ी में सुबह में होते हैं, अरे अरे उठो जल्दी उठो, ब्रश करो, ये करो, अरे तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई, ये वो। और उसी समय से हमारा डिसकनेक्शन बच्चे से शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब सो के उठता है, मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगी। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 4 to 10 और 9 और 10-11 ईयर्स के हैं। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं। वहां पर जब बच्चा सो के उठता है, प्लीज 2 मिनट बच्चे के साथ बैठिए, हग कीजिए, बच्चे को बोलिए, ओ वाह हाउ वाज योर स्लीप, अच्छे से सोए, अच्छा बेटा अब चलो हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इट मस्ट बी लुकिंग वेरी ड्रामेटिकली कि क्या ये ड्रामा है? नहीं, ये ड्रामा नहीं है। यू हैव टू डू दिस, क्योंकि उस समय बच्चे का ब्रेन, जैसे ही बच्चे का ब्रेन उस समय एकदम डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है, क्योंकि वो सो के उठा होता है, फ्रेश होता है। और आपने जैसे उस बच्चे को ये सारी बातें बोली, आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन हो गया। Now, the second thing is at the time when the child is coming back from the school. Most of the parents क्या होते हैं, स्कूल से जैसे बचाया, कैसा था स्कूल, क्या हुआ, होमवर्क क्या था, टिफिन किया, तुमने ये खाया, अच्छा खाया क्यों नहीं, क्या हुआ, मैम ने जो होमवर्क दिया था वो पूरा किया? यस यस नेहा शर्मा मैम, यू वांट टू से समथिंग? Hi, Saluri ma'am. Actually, I want to interrupt. Sorry for interrupting you in between. नो Actually, you नो। gave a point. In the morning, we should be very, calm with the child. And when the child is back from home, then also school, sorry, we should be very gentle, calm, and friendly with her or him. But यस what I face with the child is that I follow the same which you said that we should hug them, be like a friend, but यस still she cries and she throws tantrums, and it's like she's going to the school from the month of April, and now she's on summer break, but she's not ready to go to school from day one. And right now also, if I take the name of school, she gets scared, and she's like that, I don't want to go to school, I just want to be at home with you only. So is that attachment and that friendly behavior overcoming the school for her, that she is betraying school and she just want to be with me at home? So I am just a bit confused how to deal with such situation. See, Neha ma'am, what you have to do at this point of time, I said, see, loving is another thing, but when it comes to the cost of our child's development, we have to be little bit, we have to set certain boundaries.
Now, what happens at your point? What happens that the child actually is very connected with you, and she is not, not willing to go to the school. Now, आपको क्या करना है? जब अभी मैं ये तीसरे पॉइंट पे आ रही थी, जब बच्चा स्कूल से आता है, तब आपने बच्चे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब जब बच्चा बेड टाइम पे है, जब बच्चे को आप सुलाने जा रही हैं, ये वो वाला टाइम है जब आप बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है? आपका जो भी स्लीपिंग रूटीन है, आपने बच्चे को, या मे बी आप बच्चे को सोने से पहले नहलाते होंगे, या जैसे भी आपका जो स्लीपिंग रूटीन है, आप बच्चे को बेड पे लेके गए, आपने बच्चे को हग किया, आपने बच्चे को मे बी आप बेड टाइम स्टोरी सुनाते हो, या आप बच्चे से बातें करती हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकती हैं। तो आप जब बच्चे के साथ उस वक्त, आप बच्चे के साथ जब कनेक्शन बनाएंगी, उस वक्त आप बच्चे को इस बात को, यू विल टेल द चाइल्ड कि बेटा, सी, ममा इज ऑलवेज विथ यू, ममा इज देयर फॉर यू, बट बेटा, बच्चा, इफ यू विल नॉट गो टू स्कूल, आप सोचो हाउ यू विल स्टडी। Wagmi will be intelligent, how Wagmi will understand everything. So, and gradually every day constantly you have to do, आप एक दिन करके आपको छोड़ना नहीं है। आई नो कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार, दो बार, तीन बार दूसरे, ओहो छोड़ो भाई, ये तो नहीं समझने वाली, ये समझने वाला है। हम वी हैव टू बी टू मच, वी हैव टू कीप पेशेंस। अगर हम जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे हमारे बच्चे के साथ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही इसी में आती है कि हम पेशेंस लूज कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा आपका टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उस वक्त पर आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात, जब बच्चा उस वक्त टैंट्रम कर रहा है, उस वक्त 2 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, यू डोंट टेल दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कुछ मत बोलिए। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद आप बच्चे के लेवल पे जाइए। आपके लिए बच्चा आपसे 4-5 गुना बड़ा है, वो ऊपर नहीं देखेगा, आप उसके लेवल पे जाइए, उस नील डाउन होइए, उसके आंखों में आंखें डालिए, उसको कहिए, मुझे पता है कि अभी आप अपसेट हैं, आई नो यू आर अपसेट राइट नाउ, आई नो, मे बी आपने उसको डांटा होगा या जो भी उस समय, अगर बच्चा किसी और बात से अपसेट है, आप उसको गले लगाइए, आप बोलिए कि मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, और चलो, आई एम देयर फॉर यू। बच्चे के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि देयर पेरेंट्स आर विथ देम। अगर बच्चा एक बार, द टाइम, एट दैट पॉइंट, इफ द चाइल्ड नोज और चाइल्ड अंडरस्टैंड्स, माई पेरेंट्स आर विथ मी, दे आर कनेक्टेड विथ मी, माई पेरेंट्स आर देयर विथ मी, आई एम टेलिंग यू, 90% of the problem is solved. Why the child shows the tantrum? Because we all are so busy. I am not telling including me, we all are so busy in our day to day life कि हम अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमें उनको पढ़ाना है, हमें स्कूल भेजना है, हमें हमें ये भी करना है, हमें उनको पता नहीं क्या बनाना है, और एंड इसकी वजह से हम बिल्कुल भी, हम उनको एक प्रोजेक्ट की तरह डील करने लगते हैं। प्लीज ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे हैव इमोशंस। नाउ प्लीज टेल मी, what are your emotions right now? How you all are feeling? How you all are feeling? You can write in chat box, you can unmute, you can tell. Embarrassed, hopeful, guilty, proud, jealous, shy, what you all are feeling right now. You can unmute, you can write in the chat box. Please write in the chat box, you're feeling hopeful. Thank you, thank you, thank you everyone. Now I'll do a simple exercise with you. And for that, if you all can open your camera, it will be grateful for me. If okay with you. If you are not able to open your camera,
so that will be fine. Just keep your hand on your chest. Everyone, close your eyes. Close your eyes and just imagine the day. I'm getting the goosebumps right now. Just imagine the day your child, your little child, little baby is taken birth and the baby was in your hand. Feel the emotion. क्या क्या नहीं सोचा था उस दिन, बच्चे के लिए ये करूंगा, बच्चे के लिए ये करूंगी। वो छोटा बच्चा, उसकी छोटी छोटी उंगलियां आपने पकड़ा हुआ है, आप बच्चे को देख रहे हैं, वो फीलिंग याद कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा वाकई में ऐसा है जिसको आप सही नहीं कर सकते? क्या आपने अपने बच्चे पे उतना ध्यान दिया है, उसके साथ उतना कनेक्शन बनाया है? प्लीज, आफ्टर दिस सेशन, गो एंड हग योर चाइल्ड। बच्चा आपका चाहे 20 साल का है, 15 साल का है, 10 साल का है, 3 साल का है, बच्चे के साथ वो एक्चुअली आप कनेक्शन बनाइए, उसको हक कीजिए और उसको बोलिए कि बेटा बेटी जो भी है, आई एम विथ यू, चाहे जो हो जाए मैं हूं तुम्हारे साथ। और देखिए कैसे नहीं बच्चा आपकी बात मानेगा। क्यों नहीं बच्चा? क्योंकि हम करेक्शन पहले करते हैं, कनेक्शन बाद में करते हैं। हमारा कनेक्शन ही नहीं है हमारे बच्चे के साथ। इतनी चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, इतनी चीजें और हम उसके उस फ्लो में चल रहे हैं। उसका बच्चा वहां पढ़ रहा है, अरे मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, अरे वो तो डांस क्लास जा रही है, अरे मैं तुम नहीं जाती, तुमने क्या, तुमको डांस नहीं आता? क्यों कंपेयर करना है? और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही हो जाती है, यहीं पे हम बच्चों के साथ लैग कर जाते हैं। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हूँ, लेट देम बाय मेल रॉबिन्सन। प्लीज पढ़िए, लेट देम। क्या होगा? आइसक्रीम खा लेगा, सर्दी जुकाम ही तो होगा, बट इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग। आपने रोबोट, हमने उनको रोबोट समझा है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां बैठो, ये मत करो, टू मच इंस्ट्रक्शंस। सो प्लीज, आई नो इट्स अ 40 minute सेशन, आई कैन नॉट डू लॉट मेनी थिंग्स, बट एक चीज तो है कि आज से बच्चे को प्लीज एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कीजिए, उसको हक कीजिए और उसको करेक्ट करने से पहले प्लीज कनेक्शन बनाइए। आप देखिए, जिस दिन आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उस दिन बच्चा आपकी हर बात मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? आप करके देखिए। एनीवन हु वांट टू से एनीथिंग? सोनाली? Yes, actually, my daughter is still with me, but she is in a very shy nature. So she is completely agree with you and your all like all matters. She is just understanding, and she is feeling that, Mama, we have a good connection, na. That's great. So That's really, great. I'm feeling very proud to listen that you are going very correctly, and this is very right information. I'm happy that I have a good connection with my child. Thank you very That's much. great. Yes, Jyotika ma'am, you want to say something? Yeah, I would say on a lighter side that sometimes I need to tell to my daughter that Mahira, wait, I am not a robot. I am your mama. I have so many things to do. Please, I'm not a robot. Give me some time because one after another she keeps up a thing for me. Mama, do this, do that for me, do this to me. So I have to tell her, Mahira, please, I am a human being. I Treat understand. me like a But human being. yeah, we know actually the problem is we all are very busy, and that is why sometimes we lose connection. But I would just suggest that if these three point at a day, morning, afternoon, by maybe you are not, in the office at that point of time, so you can do that connection when you come back from the office, instead of asking just क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ, क्या homework मिला, you can just have a connection time
and that bedtime is really very important. So if these three things, I think we all will follow. I know it's a very short, and I know we can another day we can connect, and and we can have lot many talks. We have only left 2 minutes. If anybody who wants to say something regarding this session. Saloni ma'am, Yes. I'm very thankful to you that this conversation was very good, very nice, very informative informations you give to us, and हम लोग कोशिश भी करेंगे कि और जो चीजें हमारे मेरे और मेरे बच्चे के बीच में लैक हो रही हैं वो चीजें फुलफिल हों. So thank you so much. तो अगली बार बच्चे को And डांटने से. Yes ma'am, please. this idea is also very good that in the morning and at night before going to bed, we should hug each other. It's a very good idea. And I think I read this at your status only once, Yeah. long back, I mean 2-3 months back. So from that day, I started doing this and I feel very good about this. थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू. एंड अब अगली बार ध्यान दे दीजिए, आप डांट रहे हैं तो बच्चे का ये वाला ब्रेन शट है, सुन नहीं रहा बच्चा आपकी बात. तो डांटने से पहले वो ये ध्यान दीजिए कि उनका ये वाला ब्रेन फंक्शनल नहीं है, तो उनको कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है. ओके, सो थैंक यू सो मच everyone from my heart, that from your busy schedule you all have taken this time and you have joined this session. Thank you